Good morning 10th English medium student. Welcome again on our online classes of APN School, and today we start our lesson 1's next part of geography, resources and development. Yesterday we discussed about the resources and I told you that resources are of normally two types, natural resource and human resources. Okay, so natural resources are the resources which are given by the nature and human resources are the resources which are made by humans. Okay, so ये मैंने आपको कल डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा बताया था कि resources जो हैं normally what is resource? I told you that resources are the elements which are used to fulfill people's requirements or needs. Okay, and humans modified the resources according to their needs. They modified the resources and used them फॉर फुलफिलमेंट देयर नीड्स. ओके, मैंने आपको बताया था रिसोर्सेज जो हैं वो ह्यूमंस की, पीपल्स की बेसिक नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. वाटर रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स, लैंड रिसोर्सेज है ना, फायर रिसोर्सेज या वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, ये सब मैंने कल आपको बताया था. सो रिसोर्सेज आर द एलिमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द basic needs or requirements of human beings. Okay, now today we continue our this topic. That here you see that there is the classification of resources. This is the chart of classification of resources. First is resources, that I told you already that what is resources. So resources are the elements which are used for fulfillment of basic needs and requirements of human beings. This is called, these are called resources. Okay, now resources are normally two types. I already told you that natural resources and human resources. Okay, natural resources, that means the resources which are given by the nature, and human resources are the resources which are made by humans. Okay, so natural resources and human resources are the two main parts of resources. Now the natural resources are already divided into two parts, renewable resources and non-renewable resources. Okay, natural resource जो है वो भी आपके दो पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट वन इज renewable resources and second is non-renewable resources. Okay, अब हम जानते हैं कि renewable resources क्या होते हैं. So renewable का second meaning होता है reproduced करना. Okay, so the resources which can be reproduced are known as renewable resources. Okay, ऐसे resources जिनको कि हम reproduce कर सकते हैं, दोबारा produce कर सकते हैं, उन resources को renewable resources कहा जाता है. And non-renewable resources are the resources which are not reproduced anymore. एक बार produce होने के बाद उनको दोबारा reproduce नहीं किया जा सकता. Got it? So renewable resources are the resources which can be reproduced. These resources are reproduced by any type of physical, chemical or mechanical process. Okay? जो renewable resources हैं वो resources जो हैं वो renew किए जा सकते हैं, reproduce किए जा सकते हैं किसी भी chemical, mechanical या physical process के through. Got it? इसमें आपकी जो main examples हैं वो हैं solar and wind energy. Okay, solar and wind energy are the example of renewable resources. Renewable resources में solar energy, wind energy, water, forest, wildlife, these are the renewable resources. Okay, now come to non-renewable resources. That what is the meaning of non-renewable? In simple terms, the resources which are reproduced is known as renewable resources. So the resources which are not reproduced are known as non-renewable resources. Got it? वो resources जो कि जिनको दोबारा प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता किसी भी केमिकल, फिजिकल या मैकेनिकल मेथड के थ्रू या प्रोसेस के थ्रू, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं. क्लियर है? तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके एग्जांपल है सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. एंड नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उसमें नॉर्मली आपके एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स एंड फॉसिल्स. ओके, मिनरल्स या मेटल्स जो होते हैं, मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए, फॉसिल्स हो गए, दीज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. बट अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर रिप्रोड्यूस्ड बाय एनी chemical, mechanical or physical method, and non-renewable resources are the resources which are not can be reproduced by any process or any method.
Now come to the classification of renewable resources. Renewable resources के भी दो पार्ट्स होते हैं, कंटिन्यूस और फ्लो रिसोर्सेज एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वैसे मैंने आपको नॉर्मल बताया सोलर एंड विंड एनर्जी एंड वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई. लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को नॉर्मली दो क्लासिफिकेशन या दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट है कंटिन्यूस और फ्लो एंड सेकंड है बायोलॉजिकल. कंटिन्यूस और फ्लो में आपका सोलर एंड विंड एनर्जी आती है और बायोलॉजिकल में नॉर्मली आपका नेचुरल वेजिटेशन दैट मीन्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आता है. क्लियर? नॉन रिन्यूएबल में सिंपल जस्ट लाइक रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को टू पार्ट्स में बांटा गया है आपका कंटिन्यूस एंड फ्लो और बायोलॉजिकल. क्लियर? सो कंटिन्यूस और फ्लो में सोलर और विंड एनर्जी आती है एंड बायोलॉजिकल को भी टू पार्ट्स में बांटा गया है जिसमें एक है नेचुरल वेजिटेशन दैट मीन्स फॉरेस्ट एंड सेकेंड इज वाइल्ड लाइफ. क्लियर? सो यहाँ पर हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बच्चों, उनको हमने पहले दो भागों में बांटा, renewable resources, non-renewable resources. Renewable resources are the resources which are reproduced which can be reproduced by any physical, chemical or mechanical process, and non-renewable resources are the resources which cannot be reproduced. Got it? फिर renewable resources को टू पार्ट्स में बांटा है हमने, continuous और flow and biological. क्लियर? और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमने बांटा है टू पार्ट्स में, ये है रिसाइकेबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज. अब व्हाट इज रिसाइकेबल रिसोर्सेज एंड व्हाट इज नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज? तो रिसाइकेबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा बनाकर और उनका उपयोग हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि इसमें आपके जो मिलियन ऑफ ईयर्स देयर फॉर्मेशन जो होता है दीज रिसोर्सेज का, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को फॉर्मेशन करने के लिए काफ़ी सारे साल लगते हैं. अब इसमें रिसाइकेबल दैट मीन्स मेटल यानी धातु को आप गलाकर पिघलाकर किसी भी शेप में किसी भी उसमें दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो ये आपका रिसाइकेबल रिसोर्स है. और नॉन रिसाइकेबल दैट मीन्स फॉसिल्स और फ्यूल्स, यानी कि जो ईंधन होता है, फॉर एग्जांपल कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, ये जो आपके फॉसिल्स और फ्यूल्स हैं ये नॉन रिन्यूएबल में ये नॉन रिसाइकेबल है. क्लियर? नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं वो भी टू टाइप्स में हैं. फर्स्ट इज रिसाइकेबल, जिसमें मेटल एग्जांपल है कि मेटल को हम रिसाइकिल करके दोबारा एनी शेप में किसी भी शेप में ला सकते हैं. उसको हम पिघलाकर उसको गलाकर हम हीट के थ्रू हम उसको दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं. बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ही जो आपके नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज हैं वो हैं फॉसिल्स एंड फ्यूल्स. क्लियर? तो यहाँ पर ये नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हुआ. अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज में टू टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस. दैट मीन्स जो बिल्डिंग्स हैं, जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, सारी चीज़ें जो कि मैन मेड हैं, ऐसे सारे रिसोर्सेज जो कि मैन मेड हैं, जो कि आपकी यूज़ के लिए, आपकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाए गए हैं, दीज आर नोन एज ह्यूमन मेड या ह्यूमन रिसोर्सेज. सेम एज क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये भी आपका ह्यूमन मेड है कि किस तरह की क्वांटिटी और किस तरह की क्वालिटी आपको यूज़ करनी है. ये सारी चीज़ें नेचर के थ्रू आपको नहीं बताई गई हैं. ये सारी जो पॉइंट्स हैं, ये सारी जो एलिमेंट्स हैं, ये ह्यूमन के थ्रू जनरेट हुए हैं. तो ह्यूमन रिसोर्सेज में आपका फर्स्ट आता है structures and institutions and second है आपका quantity and quality. So student, this is the classification of your lesson 1 resources and development. Okay, there are two types of main resources, natural resource, human resource. Natural resources divided in two parts. First one is renewable and second is non-renewable. Then renewable resources also divided in two parts. First is continuous or flow and second is biological. Got it? Then biological resources also divided in two parts. First is natural vegetation, that means forest, and second is wildlife. Clear? Now come to human resources. Human resources, that means man-made resources. These are divided in two parts. First is structures and institutions, including buildings, hospitals, schools, okay, museums. These all are resources which are man-made resources for human beings. These resources fulfill the needs of humans by made of human beings. Okay, and second one is quantity and quality. This is the criteria of the any type of things which are also made by humans, and this resource is also known as man-made resource or human resource. Clear? So now come to the development of these resources. As you all know that India is a
vast country which has lots of resources. Okay, वास्ट रिसोर्सेज हैं इंडिया के पास. एक इंडिया डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपमेंटल कंट्री है. इंडिया में कंटिन्यूसली डेवलपमेंट चलता चला जा रहा है. फॉर एग्जांपल जैसे हम पुराने समय में थे, हमारे हिस्टोरिकल पीरियड में हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, उतना हमारी नीड्स को फुलफिलमेंट के लिए उतने प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे जितने कि आज के समय में, आज के सिनेरियो में हमको दिखाई पड़ते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का डेवलपमेंट होता चला जा रहा है, भले ही वो साइंटिफिक थ्रू हो या फिजिकली हो रहा हो या मैकेनिकली हो रहा हो, बट डेवलपमेंट जो है वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है. कोई भी चीज़ जो है, कोई भी प्रोसेस जो है, कोई भी वर्क जो है, इवन कोई भी फील्ड है, वो कंटिन्यूसली डेवलप हो रही है. एंड दीज डेवलपमेंट्स आर ओनली डिपेंड ऑन रिसोर्सेज. ओके, सो देयर इज अ मेन रिलेशन बिटवीन द रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. ड्यू टू द रिसोर्सेज डेवलपमेंट इज हैपन. ड्यू टू द रिसोर्सेज डेवलपमेंट इज हैपन, डेवलपमेंट इज पॉसिबल. रिसोर्सेज के द्वारा ही डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल. क्लियर है? सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इज नाउ completed, students, and now further we will discuss in our next video.